trailer, of course, looks extremely intriguing. And Thank also, you. this is the kind of film If that's you working. stand in the Sure. center, then we Sure, can. Yeah. ma'am. You want to have your release season? Yeah. 10 minutes, it will be done. And this is a kind of film that's working at the box office currently more than big star-driven vehicles. So especially at a time like this for the film to come out, do you think it's fortuitous right now? Like it's It's fortunate right now for the film box office wise to come out at a time when small plot-driven films are working at the box office? There is no time which is fortunate for any genre, and there is no time which is unfortunate. It's always about the story. It was always like that. Sadly, we always mistake it as the trend. Sadly, we always try to follow uh, uh, the so-called successful genre that we witnessed few films before, and we really take it as a trend. Actually, it's never like that. It's always about the uniqueness of the story. It's always about how well the film is directed and how well the film has shaped up. I strongly believe in that. If you see in this year, all the films which have done well are completely different from each other in terms of genre. See, it's never one kind of film which has been doing well, and we are very confident that we really made the film be a part of a fantastic film. Now it's up to the audience to decide whether they really agree with it or they don't agree with it. And both of you being exemplary actors, was it easy to play off each other's energies this time around? I think for me it was a huge advantage to be working with him because, like you said, it's always an exchange between two co-actors, and it's not always that you get that from the other person. And here I got more than I was giving, I think. So for me, it worked out beautifully well because it's synergy and it's really, um, like you said, feeding off each other and just organically building something that finally becomes watchable or becomes a great experience for you. So if you can also comment on that about working with two actors of such great prowess. Yeah. I have to add one more to these two. That is, we also have Anu Kapoor in the film, and thankfully, three of them are really great admirers of each other's work. Uh, their camaraderie, you can actually see it on screen because, complimentary was the absolute right word you used, and I could see it. I was very privileged to see the script that I had written uh, getting to a different level. Um, that give and take that was happening between these three actors was exceptional. It was completely devoid of any kind of competition. It was so complimentary that everybody was trying to enhance the other person's performance, and that you can very easily see in the film. So my first day of shooting was all three of them being in one frame. मनु जी पहली बार आप इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टर तो मान लीजिए आप नहीं पूरी इंडस्ट्री के, तो आप बताइए कि प्रोड्यूसर को कुछ ऐसे प्रोड्यूसर होने से कुछ ऐसे आपको See, प्रेशर होता है या it was a difficult thing. I wouldn't say that it was a cakewalk because this is a job that I've never done before. This is a job which was completely unfamiliar to me. Uh, but yes, there were many pressures which were taken off by the other very capable people. Say by line producers or the executive producer. But at the end of the day, uh, taking the final call was always in my hand. It was always the that kind of control and power was always given to me, and taking the right call, taking the right decision was was difficult because you're doing one of the lead roles of the film, and you are thinking about the characters and the lines that you are going to do next day. Or when you are doing it at that point of time, suddenly the executive producer, he calls you down and starts telling you about the problems that he's facing and he doesn't know which way to go. In that kind of a circumstances, when your mind is completely stuck in playing the role, and you have to take a fantastic decision for the entire production. Yes, it was a difficult task, but somehow uh, with difficulty one learns
a great deal. I'm happy that the experience was fulfilling. You know, not only as an actor but also as a part producer. It was fantastic. At the end of the day, it was only possible because the people like Tabuji and Mukul Abhyankar and Anu Kapoor, all of these people were very very considerate and very cooperative, and actually at times they were taking up the responsibility. तब्बू जी क्योंकि लंबे टाइम के बाद आप साथ में आ रहे हैं तो बताइए कि कुछ ऐसा रहा एक्सपीरियंस या कुछ चेंज आया है मनोज जी के अंदर या चेंज तो mature ये है हुए कि हैं और जितने ये शर्मीले पहले थे और जितना एम्बैरस हो जाते थे मेरे फ्लर्ट करने से और इरिटेट करने से, अब उतना नहीं होते हैं. अब इनको आदत हो गई है मेरी. हाँ, अभी एकदम खुल गए हैं. और ये चेंज था कि प्रोड्यूसर भी थे इस फिल्म में, और जैसा इन्होंने कहा कि मुश्किल था, चैलेंजिंग थी इनकी जर्नी. मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि मुश्किल इसीलिए होता है क्योंकि मनोज जी अपने काम को बड़ा सीरियसली लेते हैं, और चाहे वो एक्टर का रोल अदा कर रहे हो या प्रोड्यूसर का, बिकॉज वो इतनी सिंसियरली उसको करना चाहते हैं, और क्योंकि अच्छा करना चाहते हैं. एज अ प्रोड्यूसर ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू डू द बेस्ट. That is why it matters to him, and that is why it also he is able to do it so beautifully well. वो एक बहुत बड़ा चेंज था कि मैंने उनका वो एस्पेक्ट भी देखा. और मैं तो चाहूँगी कि मनोज जी जैसे प्रोड्यूसर सिर्फ मुझे मिले क्योंकि बाकी लोग डिजर्व नहीं करते. ये बड़ा स्पॉइल करते हैं अपने एक्टर्स को और सारे यूनिट को. ओके, जैसे कि रिसेंटली में आपको गोलमाल में दिखा है, एक अलग तरीके का कैरेक्टर था, एक फनी कैरेक्टर था. जी. इस बार हम आपको एक अलग तरीके के कैरेक्टर में देख रहे हैं, तो कितना चैलेंजिंग था ये कैरेक्टर आपके लिए? चैलेंजिंग तो था क्योंकि उसकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, और एक्चुअली काफ़ी सोचने पे मजबूर करता था. हमेशा मैं मनोज जी और मुकुल को पूछती थी, ये ठीक हो रहा है ना, ये जैसे हम चाहते हैं हो रहा है ना. और क्योंकि मनोज जी का भी जो कैरेक्टर है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और आसान नहीं है. आई थिंक मेरे कैरेक्टर से 10 टाइम्स ज़्यादा शेड्स मनोज जी के कैरेक्टर में. तो वो हर सीन में वो एक सिंक रहना और ग्रो करना उन कैरेक्टर्स के साथ थोड़ा मुश्किल तो था, बिकॉज इट्स अ ट्रिकी फिल्म at the end of the day. So, but let's see. Tabu, I have a question for you. This is outside the film, but you have No, the no, earring no, no, coming no, up day after. no, 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 no. If Please, no, 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 please, I request everybody not to ask me or anybody any questions that are not related to the film. It's a humble request. Please. Fantastic. Thank you. ओके हाँ, हाँ. अच्छा, अभी शुरुआत है. अच्छा मनोज जी सेम सवाल हाँ. तब्बू जी के लिए लंबे टाइम के बाद आप लोग काम कर रहे हैं. मैं तब्बू जी के बारे में मैं बोलते चला जाऊंगा. मत शुरू- सच्ची, और फिर मैं और एम्बैरस होते होते मर जाऊंगी. मत पूछिए इनको मॉरिशस के बारे में तब्बू पूछिए जी, कि इनकी फैमिली आई थी तो इन्होंने क्या किया था. ठीक है वो भी पूछ लेंगे. एक कुछ कहना चाहते हैं नहीं, तब्बू जी के बारे में बस, मैं क्या बस, बोलूँगा. बस, आप बस, सब बस, जानते हो गया हैं है कि अभी. तब्बू जी कितनी महान आप अदाकारा हैं. मुकुल जी के बारे में बोलो. मुकुल मुकुल जी के बारे में अच्छा, बोलो. दो बातें बोले तो दो मेरे बातें पास भी बोले बहुत नहीं भंडार है छोड़ेंगे. इनके बारे में बात करने का. नहीं, तब्बू जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि आप न सिर्फ आप सब फ़ैन हैं, बाकी सब दर्शक फ़ैन हैं. हम सब उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं. जिस तरह का काम करती हैं ये, और जिस तरह के इंसान है, एक देखिए, एक जो पूरा वैल्यू है उसका क्रेडिट मैं इनको नहीं देता हूँ, इनकी माँ को देता हूँ, जिन्होंने इनको जिस एक तरीके की तहजीब और जिस तरह से उन्होंने ग्राउंडेड रखा है कि कभी भी जो है. तब्बू जी ने हर तरीके की फ़िल्मों में काम किया है, हर तरीके की फ़िल्मों में और जॉनर में सक्सेस पाई है, पहचान पाई है, नाम कमाया है. लेकिन आज भी उसी तरीके से ग्राउंडेड हैं, उसी तरीके से एक आम लड़की की तरह से रहती हैं. तो मेरे ख्याल से ये इनका बड़ापन तो है, लेकिन इनकी अम्मी का जो है बहुत बड़ा योगदान है इसमें. थैंक यू मनोज जी. और आप भी तो ऐसे माई बाबूजी. और आपके बाबूजी. बाबूजी. तब्बू जी से भी आपसे एक सवाल पूछा था कि आपकी फैमिली आई थी मॉरिशस में. जी. आप कुछ पूछना चाह रहे थे आप. मेरी बेटी जो थी, मैं बता रहा हूँ, मेरी बेटी वो एक ऐसा रिजॉर्ट था जिसमें ज़्यादा फ्रेंच आकर के रहते हैं, और उसका नाम भी फ्रेंच है. और मेरी बेटी उस समय
इतना एक्साइटमेंट में बहुत चीखती है, जब वो उसमें चीखती बहुत ज़्यादा थी। और जितने फ्रेंच टूरिस्ट थे उनको आदत नहीं है किसी किसी के इतने चीखने की। मेरी बच्ची को, मैंने अपनी बच्ची को देख के ये हमेशा कहता था कि ये बेलवा गांव की बेटी है। तो समझिए वो फ्रेंच टूरिस्ट परेशान हो गए थे। कुछ बार तो उन्होंने कंप्लेन भी किया था रिसेप्शन पे जा करके। Really? हाँ, कि एक बच्ची है जो बहुत चीखती है, मेरे ख्याल से उसके माँ बाप उसको बहुत बुरे से ट्रीट कर रहे हैं। Really? तो हमारी मेरी बेटी जो है हमें बदनाम करके उसने छोड़ा हुआ था। क्योंकि अगर उसको तो हमने जो है किसी से पूछा कि हम क्या करें, ये इतनी इस तरह से है, ये इतनी ज़िद्दी है, ये कंट्रोल में नहीं आती है, कैसे करें। तो उस आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, आपको क्या लगा था कि आपका बच्चा संत विवेकानंद पैदा होगा। आपके बाबूजी से बात कर ली होगी उसने। तो इतनी बदमाश है वो, तो इसके साथ में समय बिताना अच्छा लगा उस तरह की जगह। ओके मनोज जी, क्योंकि अब आप प्रोड्यूसर भी बन गए हैं तो ऐसा कुछ कि फिल्म जो है इतना बजट होना चाहिए जिससे हम उस पैसों से और बड़ी फिल्में बनाएं, ऐसा कुछ दिमाग में आया आपके? देखिए फिल्म बड़ी और छोटी जो है ना अपने बजट के हिसाब से होती है, और अपने बजट जो है डिसाइड होता है कंटेंट से, जिस तरह की फिल्म आप बना रहे हैं। जाहिर सी बात है आप बागी 2 जो है मिसिंग के बजट में नहीं बना सकते, लेकिन जब मिसिंग बनाने की बारी आएगी तो अननेसेसरी आप बागी 2 का जो है बजट नहीं डालेंगे, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। तो हर फिल्म हर विषय एक ख़ास बजट लेकर के आती है, और वो उस बजट के साथ हम सब लोग उस बजट के साथ में जस्टिस करते हैं, उसके साथ हम जितना जुड़ सकते हैं जुड़ते हैं। हाँ, कब ऐसा भी नहीं जुड़ते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, कोशिश करते हैं कि जो डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट हो पूरी हो, सब लोग कंफर्टेबल रहें और एक जर्नी अच्छी रहे। सर बागी टू के सक्सेस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके काफी किरदार तारीफ को हो भी रही है आपकी एक्टिंग की, जिस तरह से एक्टिंग की है, तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों को? और ये- अगर आपने देखी हो ये तो फिल्म इनकी है। नहीं, ये बड़े छुपे रास्ते में नहीं, फिल्म नहीं, है, नहीं, आप नहीं, देखेंगे तो पता पड़ेगा। देखिए बागी 2 का जो रिस्पांस है उसका पूरी क्रेडिट मैं टाइगर को और अहमद खान को देता हूँ, क्योंकि अहमद के कारण दोस्त है मेरा, उसने कहा कि मेरे कारण ये फिल्म करो, मैंने किया। लेकिन टाइगर को जो मेहनत देखता था मैं शॉट के बीच में भी, जिस तरीके से वो अपने बॉडी पे, अपने स्किल पे, अपनी जो टेक्निक है इस पे काम करते हैं टाइगर, तो मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ इन दोनों के लिए, साजिद के लिए, कि ये फिल्म बहुत बड़ी सक्सेसफुल हुई है। ओके सर, जैसे कि हमने देखा कि हर बार हम आपको एक अलग अलग किरदार में देखते हैं, चाहे वो बागी 2 हो, चाहे वो अलीगढ़ हो या वीर ज़ारा हो, ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब हो? बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि मैं इसका प्रमोशन कर रहा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मिसिंग जो है मेरे लिए, इसको पुल ऑफ करना जो है, मैं आपको सच में बता रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं मुकुल से भी बातचीत मेरी हुई थी, सुदीप चैटर्जी जो हमारे कैमरामैन थे उनसे भी बात हो रही थी फिल्म की शूटिंग के दौरान, कि क्या ये जो कर रहा हूँ ये सही बैठेगा कि नहीं बैठेगा। कई बार आपको लगता है कि आप सही कर रहे हो, लेकिन उसका जो अंत होता है उसका अंदाज़ा नहीं होता है आपको। बहुत ही अजीब हाँ, कुछ अजीब कैरेक्टर है मनोज जी, बहुत अजीब। लाइक ये दोनों के लिए, ये दोनों जैसे हैं उसके बिल्कुल विपरीत या कैरेक्टर्स हैं। एक्चुअली हाँ। मतलब तबू जी को भी अगर आप एक्चुअली कहे कि कौन सा किरदार पसंद, तो उन्हें बहुत हंसना खिलखिलाना एक्चुअली पसंद है। वो सेंसिटिव अदाकारा के तौर पे जानी जाती है, बट शी इज़ मोर मेड आई थिंक बिकॉज शी इज़ अ फिनोमिनल मिमिक। वो कमाल की 10 लोगों की नकल भी उतार सकती है। आई एम सॉरी, ये मैं सिंसियरली कमाल कमाल की I कमाल mean, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। और मनोज जी के बारे में क्विकली बताना चाहूँगा, एक एक्टर को और ख़ास करके लीड एक्टर को प्रोड्यूसर बनना, ये ऑलमोस्ट शिव धनुष उठाने इतना कठिन काम है। क्योंकि एज अ डायरेक्टर आई कैन बिकम अ प्रोड्यूसर। मैं डायरेक्ट करते हुए मैं मेरी भड़ास कहीं और निकाल सकता हूँ, भले एक्टर्स पर भी निकाल सकता हूँ। वो बेचारे वो भड़ास कहीं निकाल नहीं सकते क्योंकि सीधा उनके काम पर असर पड़ जाता है। तो इसीलिए जो मनोज जी ने ये फिल्म में प्रूव किया है, हैट्स ऑफ टू हिम, एंड आई थिंक ही शुड ट्राई इट वंस अगेन। अपने हिसाब से करे, लेकिन वो करे, ये मेरी उनको शुभकामनाएं। Just taking off from what you said, you said you love doing these comic roles, happy films, commercial films. You said I'm so tired of being slotted as in
said I'm tired of being slaughtered. I've never been slaughtered actually. Yeah, that okay. Sorry. Yeah, there That are is true. phases where you want to break from this and that, so you want to change. Yeah, and you had the very successful Golmaal 4, like you said. Doing a film like this again, Yeah. it must have been the script that was the biggest USP, or was it Manoj as the producer, or was it the director? What really attracted you? The script and Manoj ji, that I was going to get to work with him after so long, and we were trying to do something together, and we came close to working in Heather, Yeah. but Yeah. date issues, and we couldn't do it. And immediately after that, then we got the chance to do this, and I was too happy and too excited because I know I have such a great comfort with him, and he's so unconditionally there for me that I know that I'll be spoiled and indulged and all that. तो वो सोच के मुझे बड़ा मजा है कि काम भी बहुत अच्छा होगा. Of course, there's so much to learn and so much to grow when you work with him. So for me, it was like bonus. Thank you. Thank Be a you. treat for us in the theaters as well. Thank you. Please Thank watch the you. film. Thank you. Please watch the film. you so much. Thank you. यार फोटो मत लेना.